डार्क ब्लू बोला था, इसीलिए मैंने बोला था कि डार्क ब्लू कलर का जो कवर है ये रितिका का है। अभी डब्बे समेट दो वापस, है ना, और इसको क्लीन सॉरी। कर ले गर्वित, अब सेंटर मेंटेन करते हैं सर, सीधा ना, कोई नहीं, बना दीजिए। हटियो, देख मेरा फोन किसके पास है? फोटो के लिए कौन है? यहाँ कुर्सी है, नीचे आपको यार
So, to officially open today's program, I invite Principal Ma'am to deliver the welcome address. थैंक यू स्मृति, बहुत बहुत धन्यवाद सर आलोक जी कि आप हमारे साथ आज जुड़े हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि ये स्टेज भी आज ही बना है। सो अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू एवरीवन हू इज हियर इन दिस रूम कि ये भी एक तरह का इनॉग्रेशन हुआ। इससे अच्छा इनॉग्रेशन और क्या हो सकता है कि दधीची देहदान के जो लोग जो त्याग में विश्वास करते हैं और संत निरंकारी मिशन के जो लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं, और दोनों ग्रुप जो सिर्फ त्याग विश्वास एक स्पिरिचुअलिटी और सोशल वर्क पे विश्वास रखते हैं, उनसे हम इस स्टेज का उद्घाटन करें। मिरांडा हाउस के लिए ये बहुत बड़ी बात है। एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल हू आर हियर। Smriti, it is actually Smriti's program, and I must say a round of applause to young Professor Smriti who has been able to bring this program to us. To the Department of Chemistry, Kalavati is here and all the teachers are here. I would like to thank you again. Miranda House has a legacy of having been committed to gender equality, to bringing about empowering of women. But now it is the time of women to give back, sir. And the women who are here would like to give back and learn from you. So Alok ji, who is a lawyer, who has been a leading political activist, he came to Miranda in the 1970s as a political activist, committed to the Rashtriya Swayamsevak, and also now as the head of the Dadichi Dedan group. I've also found out something else about him. He is someone who has always sacrificed. He has never wanted positions. Yes. And I have found out from a lot of his admirers that he has always given up things and sacrificed, and that is his inspiration. Thank you, sir, for being here with us. We are also joined by their team, Tayal ji and his team here. So thank you for joining us. From the Sant Nirankari Mission, we have Rakesh ji, who will be speaking to you and motivating you to look at water conservation. We have Gauridat ji, Amandeep ji, who is now a part of Miranda House in every sense. Pankaj ji, thank you so much for joining us. Miranda House, really it is a wonderful day. It is a day of learning how to give back. And in giving back, we will get a lot. And on that particular message, I would like to end my welcome address. Thank you so much. I would also request ma'am to please welcome sir formally. I would also request ma'am to please welcome Rakesh ji. Thank you so much, ma'am. And now a formal introduction of our chief guest, Shri Alok Kumar ji. Shri Alok Kumar ji is a beacon of inspiration whose life reflects an unwavering commitment to humanity and the greater good. As the founder and patron of Dadichi Dehedan Samiti, Shri Kumar has been a guiding force in promoting organ and body donation, transforming countless lives through his extraordinary vision and compassion. Under his leadership, the Samiti has empowered individuals to pledge their bodies and organs, creating a legacy of selflessness and hope. Shri Kumar's journey has been shaped by courage and conviction. As a young student leader at Deshbandhu College, and later as the first directly elected president of the Delhi University Students' Union, he stood for justice and service.
This commitment continued as he fought against the suspension of fundamental rights during the emergency, even enduring imprisonment for his beliefs. A senior advocate practicing in the Supreme Court of India and Delhi High Court, Shri Kumar's profound sense of responsibility extends beyond the courtroom. He has held various leadership roles, including serving as the Deputy Speaker of the Delhi Legislative Assembly and currently as the International President of Vishwa Hindu Parishad. He is also a Director of Bharat Prakash Delhi Limited, a Trustee of Pran Pravah and a Trustee of Bharatiya Chitra Sadhana, a public charitable trust dedicated to promoting Bharatiyata in Indian cinema. Shri Alok Kumar's work in organ donation exemplifies his vision of creating a more compassionate world, inspiring us all to embrace the values of giving and service. His dedication reminds us that a single act of kindness can create ripples of change, touching lives and fostering humanity. Today we are honored to have him among us, leading by example and urging us to walk the path of selflessness. Sir, Alok, please. बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि मैं 70s के बाद में यहाँ आया। मैं यहाँ आया था 73-74 में, जब दिल्ली के विद्यार्थियों ने मुझे डूसू का प्रेसिडेंट चुना था। उसके बाद भी बाकी कॉलेजेस में आना हुआ, फिर अंडा में आ जाना हुआ है। प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा जी, स्मृति जी, राकेश जी, तायल जी, बहनों, देहदान समिति की ओर से ये कार्यक्रम है बॉडी और ऑर्गन डोनेशंस के लिए। मैं पहले आपको अपनी एक बहन के बारे में बताता। उसका नाम है चित्राचारी, तमिलियन ब्राह्मण है। मैंने उसका नाम अखबार में पढ़ा, उसका घर ढूंढा और उसको जाकर कहा कि अगर तुम मेरे को भाई स्वीकार कर सको तो मुझे आनंद होगा। शी एक्सेप्टेड मी एज अ ब्रदर। वो और उसके हस्बैंड थे अजय, दोनों चेन्नई के थे। यहाँ काम करते थे तो दिल्ली में रहने लगे। 2 छोटे बच्चे भी थे। एक दिन शाम को अजय कुछ लेने के लिए मार्केट गए। वहाँ पे कोई डिच खोदी हुई थी डीडीए ने, स्कैफोल्डिंग नहीं थी, सिर के बल गिर गए। उनको एम्स ले जाया गया। चित्रा को खबर मिली। चित्रा बच्चों को लेके वहाँ पहुँची, अपने हस्बैंड की बॉडी को टच किया। हाँ ठीक है, दिल धड़क रहा है, नाड़ी है, शरीर गर्म है। सांत्वना हुई कि अजय हैं। डॉक्टर ने उसको उस समय अंदर बुलाया और कहा, बेटी तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई। इसने चिल्लाकर कहा कि आई हैव जस्ट सीन हिम, द बॉडी इज वार्म, द हार्ट इज बीटिंग, देयर इज पल्स टू इट। डॉक्टर ने कहा 2 तरह की मौत होती है। एक तो जब हृदय गति बंद हो जाती है तब मानते हैं कि ये मर गया। दूसरे, जब ब्रेन 100% डेड हो जाता है। 4 अलग अलग डिसिप्लिन्स के एक्सपर्ट्स ये घोषणा करते हैं कि ये आदमी सिर्फ कोमा में नहीं है, ये ऐसे कोमा में है जिसमें से लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम उसको ब्रेन डेथ कहते हैं। चित्रा को ये बात एब्जॉर्ब करने में टाइम लगा। फिर डॉक्टर ने कहा, चित्रा इसका हार्ट डोनेट हो सकता है। हमारे पास में एक पेशेंट है, उम्र ज़्यादा नहीं है, मृत्यु की इंतजार कर रहा है। अगर तुम अपने पति का हृदय दान करो तो वो ठीक हो जाएगा। चित्रा के पास में घर से कोई नहीं था, पड़ोसी नहीं थे, मित्र नहीं थे,
Alone she had to decide. 2 बच्चे उसके पास। चित्रा ने फैसला किया कि मैं अपने पति के धड़कते हुए हृदय को दान करती हूँ। हृदय दान हो गया। जिसको लगा उसकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक होकर वो घर चला गया। 5-6 साल बाद वो चित्रा के पास में आया और उसने कहा, मेरी बेटी की शादी है, ये सब तेरे कारण से हो रहा है, शादी में आओ। तो चित्रा भोपाल गई, शादी में भाग लिया। जब फेरे हो रहे थे तो इस आदमी ने देखा चित्रा यहाँ नहीं है। ढूंढा, अंदर के एक कमरे में बैठी थी। कहा, चित्रा चलो, फेरों में चलो। चित्रा ने शी वॉज रिलक्टेंट टू इट। और जब इसने बहुत इंसिस्ट किया तो चित्रा ने धीरे से कहा, भैया मैं विधवा हूँ, विधवा का फेरों पर बैठना शुभ नहीं होता। जाकर के फेरे रुकवा दिए। वापस मुड़ के आया कि चित्रा तेरा बैठना शुभ नहीं होगा। आज जो है इस घर में हो रहा, जो आनंद छाया है, बेटी के विवाह के इतने सारे लोगों, वो अपने घर जा रही है। अगर तूने हृदय न दिया होता तो ये इवेंट नहीं हो सकता। तेरे रुक गए, तेरे बैठने से अधिक शुभ कुछ नहीं होगा। तू चलेगी बैठेगी तो फेरे पूरे होंगे। ये मैंने जब पढ़ा तो मैं घर गया। ये है ऑर्गन्स डोनेट करने का फायदा। वी लिव ऑन। ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में सेकंड एसी या चेयर कार में एक 17-18 साल का बच्चा था। आइए, स्वागत है। And I'm so happy that you could come. नहीं, I'm sorry, but जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मैं भाग। तो ट्रेन में एक 18 साल का नौजवान होगा, 18-19 साल का, बाहर देखता था, पूछता था वो क्या है। उसके साथ वाला बुजुर्ग कहता था पेड़ है। तो वो उल्लसित होता था, ताली बजाता था, पेड़ पेड़ पेड़। किसी और पेड़ की ओर इशारा करता था, पेड़, किसी और को पेड़, गाय गाय गाय, तालाब तालाब तालाब। बहुत एक्साइटेड था। एंड दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम। किसी ने इरिटेट होकर पूछा, क्या है ये, पागल है, इतना बड़ा है, कभी गाय नहीं देखी, कभी पेड़ नहीं देखा। बूढ़े ने कहा, हाँ नहीं देखा। उसको आंखें नहीं थी। किसी ने मेहरबान होकर के आंखें दान की थी। हमारी बारी आ गई, इसको आंख लगी है, ये इस उम्र में पहली बार दुनिया को देख रहा है, रंगों को देख रहा है, दृश्यों को देख रहा है। कौन सी चॉइस बेटर है, चिता पर जल जाने की, और फिर किसी को वो राख लेकर के हरिद्वार जाने की, या लोगों को स्वस्थ करने के लिए दान करने। तदीचे देह दान समिति तो 97 से, और हमको बहुत संतोष है कि इतने समय के काम में अब दिल्ली के जो बड़े सरकारी आई बैंक्स हैं, केंद्र का केवल इतना नहीं है कि हम
दान करेंगे किसी को मिल जाएगा। जब हम दान करने का संकल्प करते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ परिवर्तन है। आज ये हमारी बॉडी है, हमने दान करने का संकल्प किया तो हमारी नहीं रह जाती। मुझे ध्यान है, बिल्कुल शुरू के दिनों में एक बार पूर्वी दिल्ली में बाढ़ आ गई। मेरी जिम्मेवारी लगी कि मैं राहत के लिए काम करूँ। पहले ही दिन आंखों में इन्फेक्शन हो गया। पिताजी ने कहा कल सवेरे दिखाना फिर जाना। तीसरे दिन भी, तो तीसरे दिन मैंने शाम को कहा कि बैठो जरा मेरे पास, तुमने आंखें दान करने का संकल्प किया है? मैंने कहा हाँ, आपको तो पता है, आप क्यों पूछ रहे? तो उन्होंने कहा अगर तुमने आंखें दान करने का संकल्प किया है तो दान करने की स्वस्थ रहे, ये किसकी जिम्मेवारी है? We become trustees of our own bodies. This becomes something that we have resolved to donate. हमने संकल्प किया है कि दान करेंगे। अब ये ठीक से उपलब्ध रहे, ये जिम्मेवारी हमारी है। एक और बात आपको बताता हूँ, एंड देयर इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन टू ऑल दैट व्हाट वी आर डूइंग। सबसे पहली बार जब हम लोगों ने डोनेट किया तो हमने अपनी विल लिखी, विल को रजिस्टर कराया, और रजिस्टर कराने के बाद में, रजिस्टर कराने के लिए हम सब रजिस्ट्रार के पास गए। एक सेमी सर्कल में बैठे हुए थे और जिसका नाम आता था वो उनकी टेबल तक जाता था और फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती थी। मेरा नाम बुलाया, मैं भी गया, तो हो गया। पर मेरे को एक ऐसी कल्पना हुई, मान लो मैंने अपने मन में अपनी मृत्यु देखी है, मैं घर आ गया, पर वो कल्पना थोड़ा बढ़ती गई और मैंने अपनी उस कल्पना में अपनी मृत्यु देखी। घर वालों ने बाहर की सड़क पे एक छोटा सा शामियाना लगवा दिया है, एक मेज है, मेज पर बॉडी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा सब कुछ कल्पना करते करते अस्पताल की गाड़ी आई, शरीर उस पर रखा गया, मैं चला गया। सवेरे एकदम 4 साढ़े 4 बजे मेरी नींद खुली और मुझे इस कल्पना का अर्थ समझ में आया। वो जो है, जो मैं देख रहा था और जो अस्पताल की गाड़ी में रखी गई थी, वो मेरा शरीर था, वो मैं नहीं था। आई एम नॉट द बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं। तो शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? तो मुझे उस समय में एक ऐसा अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। अपने ही शरीर से थोड़ा अलग हो जाना, अपने शरीर को देखना और ये समझना कि ये पूरा जीवन इसी शरीर को सजाने संवारने और इसके फायदे के लिए खर्च करने का नहीं है। एक बड़ा समाज है जिसको हमारी जरूरत है। हम सब लोग सौभाग्यवान हैं कि हम कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वी आर द प्रिविलेज्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी। और हमारे घर के आसपास 2-3 किलोमीटर के सर्कल में ऐसे लोग हैं जो झुग्गी में रहते हैं, ऐसे लोग हैं जिनको सरकार फ्री राशन देती है, इसलिए उनको खाना मिलता है। फर्स्ट जनरेशन बेगर्स है, उनके लिए कंप्यूटर से अच्छी सी बड़ी सी बात है। उनके सपने भी बड़े नहीं। क्या मैं अपना कुछ टाइम, अपना टैलेंट उनके साथ शेयर कर सकता हूँ? क्या मैं इस पूरे सोशल वेलफेयर के फैब्रिक को अपना करके उसका एक पार्ट हो सकता हूँ? तो मुझे लगा कि हम सबके हाथ में एक ऐसी चाबी लग गई है जिससे हम अपने जीवन को और जीवन की धारणाओं को रीसेट कर सकते हैं। मेरे फादर की जब बॉडी हमने डोनेट की, और अब मैं आपको बॉडी के बारे में कह रहा हूँ, मैंने आपको ऑर्गन्स के बारे में बताया। तो अस्पताल में गए, उनको बॉडी हमने दे दी। मेरे एक साथी ने डॉक्टर से पूछा
आप क्या करेंगे इसका? डॉक्टर ने कहा कि हम इसमें पहले एक दवाई भरेंगे, दवाई भरने से ये डिके नहीं होगी, खराब नहीं होगी, इसको एक बॉक्स में रखेंगे। और वैसे तो 4 बच्चों के पास में एक शरीर होना चाहिए, पर उतना नहीं है, तो हम 27-28 बच्चों को ये बॉडी सौंप दें और वो फिर अंगूठे से यहाँ से शुरू करेंगे, इसको खोलेंगे, इस मोड़ को देखेंगे, इसकी हड्डियों को, इसकी शिराओं को देखेंगे, ऐसा सारे शरीर का अध्ययन करेंगे, क्योंकि शरीर का मॉडल तो हो नहीं सकता, शरीर समझना है तो शरीर चाहिए, हेड टू टो। ये उनका गुरु है, इसी से वो डॉक्टर बनते हैं। अगर कोई नई सर्जरी आती है तो उस सर्जरी को इन पे कराते हैं, अगर कोई रिसर्च करना हो तो इन पे कराते हैं। दिस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर टीचिंग। तो मुझे लगा, हमारे पिताजी बहुत जोर से हंसते थे, तो मुझे लगा दैट आई हैव हर्ड हिम लाफिंग अलाउड। इन्फेक्शस हंसी थी उनकी। उन्होंने जीवन भर सेवा के लिए काम किया था, और मुझे लगा कि मरने के बाद में उन्होंने स्वर्ग से सुना होगा कि सिर से लेके पैर के अंगूठे तक प्रत्येक अंग, इसको तो मिट्टी ही कहते हैं, काम आ जाएगा। इसको 6 मन लकड़ी नहीं चाहिए, 400-500 हजार लोग शमशान घाट में जाके विदा दें, ये नहीं चाहिए। ये तो शिक्षक हो गया। तो 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है ऑर्गेन्स को डोनेट करना, जो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। आंखें तो सभी लोग कर सकते हैं, घर से हो जाती है। आपको मालूम है, स्किन भी डोनेट कर सकते हैं, और ये स्किन बहुत काम आती है। किसी भी उम्र का व्यक्ति स्किन डोनेट कर सकता है, उसमें कुछ मैच भी नहीं करना होता ब्लड ग्रुप वगैरह। वो घर आकर के स्किन ले लेते हैं, माने हमारी पीठ की और थाइस के पीछे का एक थिन लेयर वो निकाल लेते हैं, और जो अस्पताल का बर्न वार्ड है, उस बर्न वार्ड में जले हुए के इलाज के लिए बहुत काम आती है। तो अगर बॉडी डोनेट नहीं कर सकते, ऑर्गेन्स कर सकते हैं। मैंने आपको हार्ट का बताया, ब्रेन डेड में तो सारे शरीर की सब चीज़ें दान हो जाती हैं। आजकल तो हाथ भी किसी हाथ को लग जाता है, पैर भी किसी को लग जाता है, तो ऑर्गेन्स डोनेट कर सकते हैं। और जो पूरी बॉडी करना चाहें, वो पूरी बॉडी भी डोनेट कर सकते हैं। कैसे करना होगा? तो मैंने किसी को कहा कि अपने घर में बात करनी पड़ेगी। तो कहने लगे, घर में तो बात नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, मत करो, पर तब तुम ये प्रॉमिस करो कि मरने के बाद तुम मुझे फ़ोन करोगे। हम तो केवल रिजॉल्व कर सकते हैं ना, डोनेट तो हम नहीं कर सकते, डोनेट तो फैमिली करेगी। इसलिए जो एक्ट है, उस एक्ट में भी लिखा है कि 2 विटनेस चाहिए हमारी प्लेज पर, जिसमें से एक परिवार का व्यक्ति होना चाहिए। परिवार डिफाइंड है, पेरेंट्स, भाई बहन और एडल्ट बच्चे, और वो भाव में हमसे मिल जाता है। आप dehadan.org से भी उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। वो प्रिंट करिए, अपना एक फ़ोटो लगाइए, साइन कराइए, फिजिकल कॉपी हमको भेज दीजिए। दैट्स इट, इतना आपको करना है। फिर हम एक उत्सव करते हैं, उसको देहदानियों का उत्सव कहते हैं। उसमें आपको आपके विटनेसेस के साथ में बुलाते हैं, और उस कार्यक्रम में जिसमें आप आएंगे, उसमें पहला सेशन जो है वो थोड़ा चाय नाश्ता और इंटरेक्शन का है। फिर कोई एक डॉक्टर
स्लाइड्स के थ्रू आपको दिखाते हैं, पावर पॉइंट के थ्रू, कि इसका फायदा क्या है। एक कोई रिलीजियस व्यक्ति बोलते हैं, जिसने हार्ट दिया है अपने घर के किसी व्यक्ति का वो बोलता है, जिसने लिया है वो कोई बोलता है। और इस सबसे जो रिजॉल्व है, जो संकल्प है, ये पक्का होता है। हमारा कन्वर्शन रेट ये 80% से ज़्यादा है। माने जो लोग संकल्प करते हैं उनकी मृत्यु होने पर 80% लोग अपने शरीर को दान करते हैं, उनके परिवार वाले, क्योंकि उन्होंने वो उत्सव में आकर सारा कुछ देखा होता है। और इसका सपना कौन सा है? तो जो 2-3 श्लोक सबको याद होते हैं, उसमें से एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। निरामय माने बीमार कोई नहीं हो। आमय माने बीमारी, निरामय माने बीमारी नहीं, किसी को कोई बीमारी नहीं हो। तो जैसे भारत ये संकल्प कर रहा है that we will become a developed country, this movement of organ and body donation is a movement to create a strong and healthy India. हमारा भारत स्वस्थ होगा, हमारा भारत सबल होगा, और इस स्वस्थता और सबलता के लिए हम जीवन भर काम करेंगे और जीने के बाद में अपना शरीर या अपना अंग ये मानवता के लिए दान करके जाएंगे। ये इतना बड़ा उद्देश्य लेकर हम काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ा संतोष हुआ, मैंने गुरु नानक की वाणी में कहीं पढ़ा, पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे कुछ काम ना आवे। पशु मरता है तो शरीर के सब अंग काम में आ जाते हैं, चमड़ी भी, हड्डी भी, मांस भी, सब। मनुष्य मरता है तो लोग कहते हैं जल्दी ले जाओ, मिट्टी खराब हो रही है। तो अब हम बाबा नानक को कह सकते हैं, पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे सबको शिक्षा और जीवन दे के जाने वाला काम है। इस कार्यक्रम के 2 हिस्से थे, थोड़ा मैं बोलूं, फिर आप लोग अगर कुछ सजेशन देना चाहें या पूछना चाहें तो मैं उसका उत्तर दूं। पहला हिस्सा पूरा करता हूं, आपको कुछ पूछना कहना हो तो आप कहें। आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं? Please introduce yourself. So, my name is Umang. I'm first year student. So, मेरा क्वेश्चन है कि हम तो आपसे इंस्पायर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ऑर्गन डोनेट करें, बट जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बहुत इनोसेंट है, वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चों की आंखें जाएं, तो हम उन्हें कैसे समझाएं कि वो मान जाएं? ऐसा है कि ये काम एक दिन में होगा ही नहीं। आप उनको एक दिन बताएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर आप छोड़ देंगे। फिर 10 दिन बाद थोड़ा सा जिक्र करेंगे, अखबार के कोई खबर बताएंगे तो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। फिर मान लीजिए आपने सोचा कि बॉडी डोनेट करना है, वो आँखों के लिए मान गए तो आँखें डोनेट करने का फॉर्म भर लिए। फिर 6 महीने, साल, 2 साल बाद उन्हीं में से कोई कहता है कि क्या फ़ायदा है मिट्टी का, चलो तुम्हारी मर्जी है तो सारा कर लो। तो थोड़ा उनसे जोर नहीं लगा सकते, उनको परसुएशन के लिए टाइम देना चाहिए, उसको स्लो बर्नर पे समझाना चाहिए, तो फिर हो जाएगा। पर वो होना ज़रूरी है, उसके बगैर दान नहीं हो सकता। तो मेरा नाम मोनिका केमिस्ट्री ऑनर्स थर्ड ईयर से। तो मेरा क्वेश्चन रीजनल तौर पे है कि जैसे जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वाले जब तक उसको दफना नहीं देते या फिर उसका अंतिम संस्कार नहीं कर देते, तब तक वो खाना नहीं खाते या फिर कुछ भी नहीं करते, तो फिर वो अंगदान के लिए अंगदान के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंगदान के बाद बॉडी मिल जाएगी, क्रीमेशन हो जाएगा। शरीर का दान करें तो हमको संतों ने पूछा, सिंस इट इज़ अ रिलीजियस क्वेश्चन, होने के बाद बहुत सारे ऑर्गन हम डोनेट कर सकते हैं,
तो सर जो हार्ट रेट हो जाते हैं उनके कौन कौन से ऑर्गन डोनेट हो सकते हैं? जिनका हार्ट फेल हो जाता है, यस सर, जो हार्ट डेड हो जाते हैं, जैसे उनका ब्लड पंप नहीं हो जाती। मेनली दो चीज़ें, आँखें और स्किन। और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ 50 साल से कम उम्र में हुई है तो उसके मेजर बोन्स, ये तीनों चीज़ें डोनेट हो जाती हैं। आप अगर अपनी आँखों के सामने कि अपने परिवार या समाज का कोई ऐसा व्यक्ति लाएंगी जिसकी पैर की कोई वाइटल हड्डी टूट गई, उसका पैर लटकाया, उसके नीचे वेट लटकाया और 3 महीने ऐसा रहा, तो आप कल्पना करिए कि अगर उसकी हड्डी रिप्लेस हो गई तो उसको कितना फ़ायदा होगा। थैंक यू सर। Good afternoon, sir. My name is Akansha. I'm from chemistry department, second year. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको इस फील्ड में कौन-कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और आप इनको ओवरकम कैसे करते हैं? मुझे नहीं लगा कि हमारे रास्ते में बड़े चैलेंजेस आए। कुछ लोगों का मन नहीं बना था। मैं जब विधानसभा में था तो एक विधायक ने कहा कि मैं आंखें दान नहीं करूंगा, मुझे अगले जन्म में अंधा पैदा नहीं होना है। तो जब मैंने बॉडी डोनेशन शुरू किया तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा अब तो फ़ायदे का सौदा है, आंखें दान करते तो आंखों के बगैर पैदा होते, बॉडी दान करोगे तो पैदा ही नहीं होंगे। तो ही डिड नॉट एग्री विद मी। बैठो आप। मुझे पहले ऐसा लगता था कि हमारे समाज के जो सुपरस्टिशंस हैं वो इसको रोकते हैं। तो हमने सर्वे कराया, किससे कराया? सी वोटर से। सी वोटर ने एक सर्वे किया एंड दैट रिटर्न वेरी अनयूजुअल फाइंडिंग्स। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के ज़्यादातर लोगों को आँखों के अलावा किसी और चीज़ का दान हो सकता है ये पता ही नहीं है, बॉडी और ऑर्गन्स के बारे में। मुझे ध्यान है, मैं ESI हॉस्पिटल्स में कार्यक्रम करना चाहता था, तो आई वेंट टू सी द मिनिस्टर, द यूनियन मिनिस्टर, और उनको जब मैंने बॉडी डोनेशन के बारे में बताया तो ही वॉज स्पीचलेस फॉर टू और मोर मिनट्स। और तब उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे पता नहीं था लोग की बॉडीज़ भी डोनेट होती हैं, मैं भी करूँगा। तो इग्नोरेंस इज़ द मेजर ऑब्स्टिकल। और इसलिए आज जो स्मृति ने और आपने अनुमति देकर इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, ये कार्यक्रम करना उसका हल है। मेरा अनुभव दूसरी तरह का है। एक सफदरजंग में डॉक्टर थे, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डेंटिस्ट्री के। उन्होंने और उनकी पत्नी ने आकर के बॉडी डोनेशन का फॉर्म भरा। 1 महीने बाद उनकी पत्नी का फ़ोन आया कि बेटा डॉक्टर साहब चले गए, अपना सामान मंगवाओ। मैं घर गया, मैं नहीं गया, मेरे साथी गए। तो उनकी एक ही लड़की थी, लड़की दामाद फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी और वो दामाद बहुत गुस्से में था। हम संस्कार करेंगे, हम डोनेट नहीं होने देंगे। उनकी वाइफ ने रेजोल्यूटली उसको कहा, आप मेरे इकलौते दामाद हैं, आप मेरे लिए मान का स्थान रखते हैं, मैं आपकी सब बातों का आदर करती हूँ, बट द बॉडी डोनेशन इज़ वन थिंग विच वी टुगेदर हैड प्लेस्ड इन फेवर ऑफ इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। समाज के सामने मैंने वायदा किया है, बेटा मैं तुम्हें इसके रास्ते में बाधा नहीं बनने दूँगी। कुछ साल बाद में उनकी भी डेथ हो गई, तो फिर दामाद का ही फ़ोन आया कि डेथ हो गई, ये बॉडी ले जाइए। इसलिए कोई मेजर ऑब्स्टेकल्स नहीं आते। सब कोई भी पार्टी सरकार में रही हो, सब पार्टीज़ के लोग इसको प्रमोट करते हैं। अभी तो किसी भी सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में अगर फ़ोन जाए, दधीची से बोल रहे हैं, तो अलर्ट होकर के हमारी मदद करते। वी आर नॉट फेसिंग एनी ऑब्स्टिकल्स and we have been successful in donating some 500 bodies, whole bodies by now, and more than 1,000 pair of eyes. सर हर चीज़ के जैसे बैड और गुड दोनों साइड होते हैं, तो हम ऑर्गन डोनेशन को कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ये इलीगल ट्रेडिंग और करप्शन से फ्री है?
हमने अपने लिए इसका जवाब ढूंढा है, और वो जवाब ये है कि दधीची देहदान समिति केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को डोनेट करती है, इसलिए उसमें इलीगल ट्रेडिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। उनके पास जो वेटिंग लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट पब्लिक डोमेन में है, तो हमारे डोनेशंस सही होते हैं। और हम लोगों ने किसी को ये पूछना है कि मृत्यु के बाद में क्या करना होता है, तो हम एनसीआर में काम करते हैं। अगर किसी डोनर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को हमें केवल एक फ़ोन करना होता है, बाकी पूरा कोऑर्डिनेशन उनके घर पे हमारा एक डेजिग्नेटेड सीनियर कार्यकर्ता जा कर के, एवरीथिंग एल्स इज फॉर अस टू ऑर्गेनाइज। इसको पूरा करते हैं। मैं प्रोफेसर स्मृति शर्मा के फादर को जानता था, वो मेरे बचपन के दोस्त थे। उनको कैंसर हो गया। कैंसर के दिनों में उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि मैं जाने वाला हूँ, विल लिखना चाहता हूँ। तो वो बताए, वैसा मैंने विल लिख दी, मैं पेशे से वकील हूँ। फिर वो कहने लगे, बचपन के दोस्त थे तो तू क्या की बोलते थे कि तूने मेरी एक बड़ी प्रॉपर्टी इसमें लिखी नहीं है, उसका क्या होगा। मैंने कहा बताओ, मैं तो लिखूँगा कि तेरे को पता है। मैंने कहा क्या। तो मुझे सोमेंद्र ने कहा कि मेरे को कैंसर हो गया है, मैं बॉडी डोनेट नहीं कर सकता, आंखें डोनेट कर सकता। इसमें लिखो कि मैं अपनी विल में संकल्प करता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी आंखें मानवता के लिए दान की जाएं। और अभी एम्स के लोगों ने एक रिसर्च की, किसी का कॉर्निया पूरा खराब नहीं होता, इसलिए किसी को पूरा कॉर्निया चाहिए नहीं होता, जितना खराब है उतना लगा दो। तो एक व्यक्ति के आय डोनेशन से केवल 2 लोग नहीं, 4, 5, 6 तक लोग देखना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Alok ji, for your thought-provoking address. I have an announcement to make. Car number 2835 is blocking the parking, so if you could just take care of that. So I'm sure students have really benefited, judging by their questions. So thank you once again. Now we will have insights from Rakesh Mutreja ji. He's an accomplished professional and executive director with Reach Group of Companies and is a devoted follower of the Sant Nirankari mission, dedicated to creating a world without walls. With 2 master's degree in philosophy and management, his journey reflects a blend of intellectual curiosity, spiritual grounding, and a lifelong commitment to personal growth. Please join me in welcoming him as he shares his invaluable insights on organ donation. Is this the mic? Also, we are very pleased to have with us Professor Rajni Abdi. So give a big round of applause to her. I would request Principal Ma'am to please welcome, officially welcome Rajni Abdi Ma'am. Over to you, Rakesh. आदरणीय आलोक जी, आदरणीय प्रोफेसर विजयलक्ष्मी जी, Smriti, the faculty members and all those who are present here, the students of Miranda House College,
humble salutations, namaskar, Nandirankar. I, on the behalf of Sant Nirankari Mission, am delighted to be a part of this wonderful, wonderful event that talks about organ donation, body donation. अभी हमने आदरणीय आलोक जी से इनके प्रबुद्ध विचारों के माध्यम से सुना, समझा, क्योंकि केवल सुनना ही काम नहीं आता, समझना भी होता है। आपके शब्दों में रैशनैलिटी थी, ट्रांसपेरेंसी थी, विवेक था, करुणा का भाव था, जो मुझे लगता है हर हृदय तक, हर हृदय की गहराई तक पहुंचा। इस संसार में अगर हम ढूंढने की कोशिश करें उन 4 कारणों को जो हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, things that bother us or are at the root of or the root cause of any kind of disruption in our mind, in our life, तो 4 चीजें प्रमुखता से आएंगी: भय, भ्रम, आसक्ति, अहंकार। भय की तो बहुत बड़ी लिस्ट है। सबसे पहले तो भय शब्द आते ही हमें मालूम है मृत्यु का भय, बीमारी का भय, द फियर ऑफ फेलियर, एग्जाम्स में फेल ना हो जाए, द फियर ऑफ लूजिंग योर लव्ड वंस। इतने प्रकार के डर हैं। फोबियाज की इतनी लंबी लिस्ट है। हाइट से डर लगता है, पानी से डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है। फोबियाज, फोबियाज, फोबियाज। दूसरा है भ्रम। अभी हमने आदरणीय आलोक जी से सुना, भ्रम भी परेशान करता है। इग्नोरेंस, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या होगा, मृत्यु से पहले क्या था, मृत्यु के बाद क्या होगा। और अध्यात्म इसी का मंथन करता है। हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने, सभी संतों ने इन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए। ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र के अंदर ही हम सुनते हैं, पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अनेकों इस प्रकार के मंत्र हैं, अनेकों इस प्रकार की विद्याएं, शिक्षाएं हैं, संदेश हैं, जो हमें बताते हैं कि हम कौन हैं और हमारे भ्रम को मिटाते हैं। रोज नए भ्रम पैदा होते हैं। समस्या यह है कि भ्रम केवल देयर इज नॉट अ फिक्स्ड quorum ऑफ और क्वांटम ऑफ इल्यूजन और इग्नोरेंस। भ्रम पैदा करना बड़ा आसान है। किसी को गलत रास्ते पर डाल दीजिए, भ्रमित कर दीजिए, हो जाएगा। मैंने 3 वर्ष ज्योतिष का भी अध्ययन किया। बड़े आराम से किसी को कहा जा सकता है आपका 8वें भाव का मंगल है, आप जीवित कैसे हैं? आपको तो ये करना होगा, इतने हजार का उपाय है, इतने का स्टोन है। एंड आई सीन इट ऑल हैपनिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। भ्रमित करना बड़ा आसान है, अंधकार में लाना बड़ा आसान है, अंधकार से प्रकाश में लाना बड़ा कठिन है, जो केवल संतों का एक कर्म रहा, उद्देश्य रहा, ध्येय रहा। एक और भ्रम, आज मंगलवार है, आज ये पूजा नहीं की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज शनिवार है, आज तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि मेरा शनिवार तो खराब ही जाता है। All of you are learned people. Can you please tell me where did we get our calendars from? जो हम कैलेंडर, आज क्या तारीख है जी? 29 जनवरी 2025, ये किसने बनाया? प्लीज। King Henry Gregorius. This is the Gregorian calendar,
1584 में ये कैलेंडर कहीं ना कहीं शुरू हुआ। हमारा कैलेंडर भी नहीं है, भारतीय पंचांग भी नहीं है ये। किसी एक पाश्चात्य सभ्यता या संसार में किसी ने कहा कि आज मंगलवार है, हाँ आज मंगलवार है, हमारे बनाए हुए मंगलवार, और हम कह रहे हैं इट इज इनऑस्पिशियस फॉर मी। अपना बनाया हुआ जाल उसी में फंस कर बैठे। इग्नोरेंस, आसक्ति, फिर अहंकार। पहले पर वापस आते हैं क्योंकि आज बात उसी की होगी। भय, मृत्यु का भय। समझते हैं मृत्यु क्या है, जन्म क्या है। 2-3 मिनट के अंदर, बहुत समय भी नहीं है, बहुत समय लूंगा भी नहीं। सुबह सूर्य उदय होता है, शाम को अस्त होता है। वी कॉल इट सनराइज एंड सनसेट। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, प्रोफेसर्स बैठे हैं। इज देयर समथिंग कॉल्ड सनराइज? डज द सन एक्चुअली राइज? डज द सन एक्चुअली सेट? देयर इज नथिंग कॉल्ड लाइफ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ. It just seems so. न जायते म्रियते व कदाचिन्नाय भूत्वा भाविता व न भूय अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. लॉर्ड कृष्णा इज टेलिंग अस थ्रू भगवत गीता, शरीर का न जन्म हुआ न मृत्यु होगी. यही भय है मृत्यु का, जिसके कारण मैं अंगदान नहीं कर पा रहा, शरीर का दान नहीं कर पा रहा. संतों ने समझाया. माटी कुदम करेंदी यार, बाबा बुले शाह जी ने लिखा. मिट्टी का जिक्र हुआ, मिट्टी तो है. माटी कुदम करेंदी यार, वावा मिट्टी दे गुलजार. माटी जोड़ा माटी कोड़ा, माटी दे असवार. माटी माटी नू दौड़ावे, माटी दे खटकार. माटी माटी वेखना आई, माटी दे गुलजार. सब मिट्टी है. एवरीथिंग दैट वी सी इज ओनली पंच महाभूत. चाहे शरीर हो, चाहे ये टेबल हो, चाहे कुछ भी हो, सब पंच महाभूत है. केमिस्ट्री में ऑफ कोर्स वी हैव 108 एलिमेंट्स प्लस द अदर एलिमेंट्स. कितने ही एलिमेंट्स के साथ उसको हम डिस्क्राइब कर लें, पर इवेंचुअली इट इज ऑल मिट्टी. जीवन 60 साल, 70 साल, 80 साल जिसको हम पकड़ के बैठे हैं. व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ? पृथ्वी की कितनी आयु है? हाउ मेनी बिलियन ईयर्स? 4.5. अब आगे बढ़ाते जा रहे हैं, 4.8 करते जा रहे हैं. 4.8 बिलियन ईयर्स. 60 साल में एग्जिस्ट करते हैं, 70 साल, 80 साल, 100 साल. डू वी इवन एग्जिस्ट? The universe, look at the universe, the expanse of the universe. Saturn से देखें तो पृथ्वी दिखती भी नहीं है, just this little dot. उसके ऊपर हम कहीं इंडिया में एक छोटे से शहर के अंदर मिरांडा हाउस में यहाँ पर बैठे हुए हैं. Do we even exist? जब समझ में आता है कि ये सब ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म का, ईश्वर का बनाया हुआ एक रचना है, जो मैं नहीं हूँ. अब मैं कौन हूँ वो अभी बताया. अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म. मैं आत्मा हूँ जो अजर है, अमर है, विनाशी है. और यही संत निरंकारी मिशन में भी हमें सद्गुरु माता श्री दीक्षा जी महाराज जो हमारे सद्गुरु हैं, वो हमें निरंतर बताते हैं यू आर नॉट दिस बॉडी. हमारे मिशन में जो पहला हमें एक प्लेज भी दिया जाता है और सिद्धांत बताया जाता है कि तुम तन नहीं हो, तुम मन नहीं हो, ये सब धन भी तुम्हारा नहीं है. जस्ट कस्टोडियंस. कुछ समय के लिए एक पात्र है, उसके अंदर सामान है, केवल ये पात्र है, बर्तन है. इसलिए इससे मोह मत करो, आसक्ति मत करो. जब इतनी गहराई तक अध्यात्म घुस जाता है, मोह भंग हो जाता है. मोह भंग हो गया, उसके बाद शरीर का जो मर्जी होता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी. कैडेवर्स की बात हुई, शरीर का दान करने की बात हुई, तो नज़दीक से देखा. हमारा बेटा, हमारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा और मेरी पत्नी दोनों का बेटा है. अक्सर हम मेरा कह देते हैं तो यू फॉरगेट द बेटर हाफ ऑफ योर लाइफ. तो हमारा बेटा डॉक्टर है. ही इज परसुइंग हिज MD इन साइकियाट्री फ्रॉम JNMC वार्डा. जब वो MBBS कर रहा था मणिपाल से, तो कैडेवर था. 25 स्टूडेंट्स को एक कैडेवर मिलता था. तो रोज कहानियां सुनते थे, आज ये ऑर्गन एक्सप्लोर किया, आज ये किया. तो एक दिन मैंने बोला, मैंने कहा बेटा हर रोज कह देते हो कि कैडेवर कैडेवर, उसको नाम दे दो. इट वॉज अ फीमेल. मैंने कहा नाम दे दो, इतना आपकी वो सेवा हो रहा है, उस शरीर से आपकी सेवा हो रही है. हमने मिलकर के उसको नाम दिया देवी.
और लगभग 2 साल तक उस देवी ने जो सेवा की उन 25 स्टूडेंट्स की, 4 कैटेगरीज थे, 100 स्टूडेंट्स का बैच था, उसी से वो विज्ञान पढ़े, उसी से वो सीखे, डॉक्टर बनना सीखे। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू डोनेट आवर बॉडीज। इट इज़ नॉट ईजी, कहा लंबी यात्रा है, बिल्कुल सही है, इट टेक्स टाइम, बट ऑफ कोर्स द जर्नी ऑफ 1,000 miles starts with a single step. And today, fortunately, I think is a very, very auspicious occasion when we've started taking this initial step. और 8 साल की आयु थी आदि शंकराचार्य जी की, जब उन्होंने संन्यास ग्रहण करके, धारण करके नर्मदा नदी के पास आकर के अपने गुरु को धारण किया। गुरु ने पूछा कौन हो, और वहीं वो निर्वाण षटकम का निर्माण हुआ कि मैं बुद्धि नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, नाक नहीं हूँ, जीवा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध निराकार हूँ, शिव हूँ। बस जिस समय ये समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, शरीर का मोह भंग हो जाएगा और हमारी प्रगति होगी उस मार्ग में जो वास्तविक सेवा का मार्ग है। संत निरंकारी मिशन या चैरिटेबल फाउंडेशन की बात करें तो अनेक इस प्रकार के कार्य हैं जिनका भी जिक्र भी आपने सुना, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, एंड आई एम रियली हम्बल्ड टू बी शेयरिंग दैट आप भी ब्लड डोनेशन के साथ जुड़े हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 1986 में ये मुहिम शुरू की और मिशन के लाखों डिवोटीज ने आज तक, इट्स अ ह्यूज नंबर, 13 लाख 1.3 मिलियन यूनिट्स ऑफ ब्लड डोनेट किए हैं। और इसी प्रकार चाहे क्लीनलीनेस ड्राइव्स हो, अनेकों इस प्रकार के प्रोजेक्ट, अमृत है, वननेस वन है, क्लस्टर्स ऑफ ट्रीज, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू टेक केयर ऑफ आवर नेचर। तो ये सारे के सारे प्रयोजन, सारे के सारे उपक्रम निरंतर आज भी सदगुरु माता श्री दीक्षा जी महाराज की कृपा से चल रहे हैं। लाखों मिशन के डिवोटीज में लगे हैं। एंड आई अश्योर यू सर, on behalf of Sant Nirakari Mission and Sant Nirakari Charitable Foundation, that we are going to be hand in hand with these initiatives also. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you so much, Rakesh ji, for adding the spiritual dimension to our program. And now Rajni ma'am will give a message to all of us. आदरणीय आलोक जी, राकेश जी, and the principal of the college, Professor Vijay Lakshmi Nanda ji. First of all, I would like to apologize for being late. There was an important meeting, but जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई और मुझे पता चला कि कार्यक्रम अभी चल रहा है, तो मैं भागती हुई वहाँ से आई. And now I come to know that I really missed a lot. मुझे नहीं मालूम आलोक जी ने मुझसे पहले आने से पहले क्या क्या कहा, but it is more of a spiritual session for me, I think. And Smriti ji, आपका बहुत बहुत धन्यवाद to organize such a kind of a program. I think that जिस तरह से आपको समझाया गया, मैं, आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, एक छोटा सा सवाल पूछूंगी. जब आप पास आउट भी कर जाते हैं, आपको कौन सा टीचर सबसे अच्छा लगता है जिसने आपको पढ़ाया और आप जिंदगी भर याद रखते हैं? कोई एक जना आंसर करें. कोई टीचर तो ऐसा याद रहता है ना, सब तो खराब नहीं पढ़ाते. कोई एक आध टीचर तो याद रहता है. मुझे तो आज तक याद है किन किन टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, और वो सब्जेक्ट जो है वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाता है. यू वर्क इन दैट सब्जेक्ट, यू लव दैट सब्जेक्ट. और आप मानेंगे नहीं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स इतना अच्छा पढ़ाया गया. मुझे 33 साल हो गए पढ़ाते, मैंने आज तक कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं छोड़ा पढ़ाना, सिर्फ इसलिए कि मुझे पढ़ाया बहुत अच्छे से गया था. जब आपको इतने अच्छे तरीके से, इतने सौम्य तरीके से समझाई गई है बात, तो मुझे तो लगता है पूरे तरह से, और जिस तरह के सवाल उसके बाद पूछे गए, मतलब आई वॉज वेरी एस्टोनिश्ड टू हेयर अ क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द आफ्टर सेंटिमेंट कि आपने बॉडी दे दी, उसके बाद आप अपना एक रिलीजियस एस्पेक्ट को भी तो कहीं सेटिस्फाई करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? तो फॉर स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट दिस थिंग ऑल्सो, I think it's a beautiful thing, and the students have really, I can understand that you've really taken it very well. आप जितने भी बैठे हैं उनमें से अगर एक मैं कह रही हूँ,
अगर एक भी फैसला ले लेता है तो इस कार्यक्रम की सफलता निश्चित है। मैं इतना कह सकती हूँ, हम अभी तक रजिस्टर तो नहीं कराया, बट मैं और अपने हस्बैंड हम कई बार बात कर चुके कि हमारी बॉडी का कोई भी अंग जो काम आ सकता हो हमारे डेथ के बाद, हम अभी देह दान तक तो नहीं, ऑर्गन डोनेशन तक तो दोनों अपना मन बना चुके हैं, एंड विल डेफिनेटली राइट ए डिक्लेरेशन ऑल्सो रिगार्डिंग दैट। बट मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात बता सकती हूँ। आलोक जी ने अभी अपने पिताजी के बारे में बताया, मेरे ख्याल उनकी माताजी और पिताजी दोनों का दे दिया गया, और जब उनकी डेथ हुई तो मैं वहाँ गई भी। जब हम गए तो ऐसा होता है ना, यूजुअली जब कभी आप जाएं तो बॉडी होती है, आप फूल चढ़ाते हैं और उसके बाद कोई सेरेमनी होती है, कुछ होती है। हम गए और एक एम्बुलेंस आई, मैंने तो अपने आँख से देखा इसलिए मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ, एंड दैट एम्बुलेंस टुक अवे। एंड उसके बाद हमने एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आगे कोई सेरेमनी है या कुछ, बोलते नहीं बस ये है। उसके बाद शायद प्रेयर मीटिंग हुई थी, मुझे ध्यान नहीं है, परंतु दैट डे, दैट फीलिंग इटसेल्फ कि आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं और आप अपनी बॉडी डोनेट कर रहे हैं, एंड फॉर व्हाट कॉज। आप सोचिए, हम लोग तो यहाँ बहुत सारी फैकल्टी बैठी है, टीचर्स बैठे हैं, हम लोग अपना पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं पढ़ाने में। आप देखिए उस ज़िंदगी के बाद भी आप किसी को पढ़ा सकते हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हम अपनी आँखों पे इतनी फ़ख्र करते हैं कि ये आँखें हैं जो हमें सारी दुनिया दिखाती है, सब कुछ दिखाती है। ये आँखें अगर जीने के बाद भी वो चीज़ें देखती रहें और शायद प्रोग्रेस भी देखती रहें और बहुत अच्छी चीज़ें और देखती रहें, तो उससे सुंदर तो क्या भाव हो सकता है। आई एम रियली ग्रेटफुल to the college also and to the organizers also for organizing such a kind of social awareness program. हम लोग बहुत academic programs करते रहते हैं, we become a part of it, but to have such a kind of awareness. अच्छा, आप लोगों में से कोई भी नहीं, मैं तो एक कहा था कोई भी ना करेगा, पर आप इसके बारे में सोचेंगे ज़रूर, सोचेंगे तो कम से कम ज़रूर, और सोचेंगे तो कहीं मन बनाएंगे तो किसी और से भी बात करेंगे, तो that I think will serve the purpose of this program. And thank you again for calling me for this program. I'm really indebted to Miranda House. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रिंसिपल मैम से हमने जब डिस्कस किया कि हम ये ऑर्गन डोनेशन सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हमसे भी ज़्यादा वो खुश थी, वो इन्वॉल्व थी, एंड शी वॉज सो पर्टिकुलर कि बहुत अच्छे से होना चाहिए, और भगवान की बहुत दया है कि आप सब तक वो मैसेज पहुंचा। तो इस ऑर्गन डोनेशन सेंसिटाइजेशन के लिए हमने पोस्टर कंपटीशन, पोएम कंपटीशन और स्लोगन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। तो जो पोएम कंपटीशन की विनर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी कविता प्रस्तुत करें हमारे सामने, जिसे आज फर्स्ट प्राइज़ दिया जाएगा। आइए बताएं। आदरणीय मंच एवं सभागार में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है महादान अंगदान। इस कविता में बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जो स्वयं को निर्धन समझता है, वह वास्तव में कितना धनवान है, क्योंकि उसके पास स्वास्थ्य का खजाना है, वह जीवन निधि जिससे वह अनेकों प्राण बचा सकता है। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। विदा ली मैंने इस संसार से प्रभु का नाम लेकर, प्रभु ने स्वर्ग में स्वागत किया प्रश्नों की सौगात लेकर। अंतिम क्षण में भी मेरा नाम जब मेरी चौखट पर जो तू आया है, संग अपने क्या अपनी दयालुता का बही खाता साथ लाया है। दीनहीन मैं टूटी खिड़की से देखता था सवेरा, क्या ही देता जब कुछ था ही नहीं मेरा। सब कुछ होकर भी क्यों खुद को गरीब बतलाता है, सब कुछ होकर भी क्यों खुद को गरीब बतलाता है। तेरे जैसा अमीर शायद ही मिल पाता है। निरोग स्वस्थ शरीर ही वास्तविक बड़ी कमाई, सब कुछ होते सोते बिन बात कुबेर से लड़ाई। इसका परिणाम आज तू खुद देख रहा है, लकड़ी की शैया पर खुद को चले जैसे घास। देख रहे अपने हुए उदास, निकल रही जब एक एक श्वास, तब जागत है कर्मों में विश्वास।
चूर हुआ अब सारा मान, तब लगा क्यों नहीं किया अंगदान। नश्वर देह से मोह क्या लगाना, वैकुंठ की यात्रा से खुद को हटाना। निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ी शक्ति, मनुष्य में समाई दयालुता की शक्ति। अंतिम पंक्ति मैं चाहूँगी आप भी मेरे साथ दोहराएं, ताकि सिर्फ इस कविता का अंत हो। अंगदान की महत्वता सदैव अमर रहे। दूसरों के जीवन से दुख को करना दूर, आज ही अंगदान पंजीकरण करवाना जरूर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और मैं ये बताना चाहूँगी कि पोस्टर कंपटीशन और स्लोगन कंपटीशन और पोएम कंपटीशन के जो विनर्स हैं, अभी आलोक जी ने हमारा पोस्टर्स जो डिस्प्ले है बाहर बच्चों के, उसके लिए ये कहा है कि हमारी समिति की एक वेबजीन निकलती है हर 15 दिन में और उसकी रीच बहुत ज़्यादा है, तो वो पोस्टर्स और ये कविता उसमें हम इस बार छापेंगे। हमारी कॉलेज में अभी मैम ने भी ये कहा है, हमारी कॉलेज मैगजीन में भी ये पोएम और वो पोस्टर्स को छापा जाएगा। तो अब हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पोएम कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ ये है दिया बांबा, प्लीज कम है। राकेश जी आप दिया बेटा। वेरी वेल डन, बहुत सुंदर पोएम, राउंड ऑफ अप्लॉज। नेक्स्ट है चांदनी BLH से, मिरांडा हाउस की स्टूडेंट है। चांदनी है यहाँ पर। हाँ चांदनी। बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर। उसके बाद पोस्टर में फर्स्ट प्राइज जीता है स्नेहा ने, BSc ऑनर्स मैथ्स, मिरांडा हाउस। कांग्रेचुलेशंस। बीच में खड़े हो, मैंने बाहर देखा। उसके बाद अंजलि मिरांडा हाउस से ही हैं और इनको सेकंड प्राइज मिला है पोस्टर में। अंजलि। उसके बाद स्लोगन का फर्स्ट प्राइज मिला है दिशा कुमार, मिरांडा हाउस से। दिशा एक बार अपना स्लोगन बोलेंगी भी। So my slogan is turn your goodbyes into a new beginning and donate organs, save life. स्लोगन में सेकंड प्राइज मिला है मंजीत कौर को, ये हमारी हिंदी ऑनर्स की मिरांडा हाउस की स्टूडेंट हैं। बेटा आप भी एक बार अपना स्लोगन बोलेंगे। याद करके रखो। अंगदान से बदले किसी की दुनिया, एक अंग से जिए लाखों दिलों की धड़कन। धन्यवाद। Thank you so much to all the dignitaries on the stage and the winners also and the participants also. Once again, a big round of applause for all of you. So now is the time for vote of thanks. On behalf of the organizing committee, I take this opportunity to express my heartfelt gratitude to all who have made today's organ donation sensitization program a success. A big thank you to all of you. First and foremost, I extend my deepest thanks to our chief guest, Shri Alok Kumar ji, whose inspiring words and unwavering dedication to the cause have left an indelible mark on all of us.
A sincere thank you to Professor Rajni Abbi and Shri Rakesh Mutreja ji for your valuable presence and contributions. To the principal of Miranda House, Professor Vijay Lakshmi Nanda, thank you is a very small word. Thank you so much for your guidance and commitment to societal progress also. This program is a testament to your dedication to inspiring young minds also and us faculty also. We are also grateful to our partners, Sadichi Dehadan Samiti and Sri Sant Nirankari Charitable Foundation. A special thanks to our talented students for their creative contributions and enthusiasm. And finally, a heartfelt thanks to the organizing committee, volunteers and staff at Miranda House. Department of Chemistry rocks, and again we have proven. So thank you so much. सर्वे संतु निरामया. धन्यवाद. और अब चाय के लिए प्लीज़ आप सब बाहर जाएंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट अमृत के प्रोग्राम के लिए हम लोग वापस आएंगे. Yes, just a second. Thank you so much. As a appreciation.